नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। लेसन नंबर 9, फॉलो योर इनर वॉइस, एक्सर्ट्स फ्रॉम सोल लेसन एंड सोल पर्पज चैनल मटेरियल। Follow your inner voice, the quiet guiding expression of your higher self. It is found in the heart, the home of the divine intelligence in your physical body. Your interior counsel is different from the directives of your ego. It is direct, calm, and clear, and serves not only your own best interest but the good of all persons. It does not flatter or condemn and never tells you what to do. It only makes gentle suggestions that support your authentic path. It is your soul's compass in this life, and it keeps you from becoming lost in the confusion of the world. Your inner voice is not a personal one, but is instead your private connection to the divine spirit we all share. It is available to guide you at all times. To connect to its wisdom, simply focus on your heart and listen. In order to truly hear, you must first disengage from other voices. To begin with, stop soliciting opinion from others. Do nothing before consulting your inner wisdom. The higher self is subtle and does not interrupt your ego or the voices of the world. You therefore must tune out the external noise and nagging words of your ego to hear its gentle direction. The ability to focus on this level is developed through regular periods of quiet reflection, contemplation, and prayer. No one can determine for you whether you are listening to your inner voice of your ego, part of your soul. Work is to make that distinction on your own. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Lesson number 9, follow your inner voice, except from soul lesson and soul purpose channel material. Follow your inner voice, the quiet guiding expression of your higher self. It is found in the heart, the home of the divine intelligence in your physical body. Your interior counsel is different from the directives of your ego. It is direct, calm, and clear, and serves not only your own best interest but the good of all persons. It does not flatter or condemn and never tells you what to do. It only makes gentle suggestions that support your authentic path. It is your soul's compass in this life, and it keeps you from becoming lost in the confusion of the world. Your inner voice is not a personal one, but it is instead your private connection to the divine spirit we all share. It is available to guide you at all times. To connect to its wisdom, simply focus on your heart and listen. In order to truly hear, you must first disengage from other voices. To begin with, stop soliciting opinions from others. Do nothing before consulting your inner wisdom. The higher self is subtle and does not interrupt your ego or the voices of the world. You therefore must tune out the external noise and the nagging words of your ego to hear its gentle direction. The ability to focus on this level is developed through regular periods of quiet reflection, contemplation, and prayer. No one can determine for you whether you are listening to your inner voice of your ego. Part of your soul work is to make that distinction on your own. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। पाठ संख्या 9, अपनी आंतरिक आवाज का पालन करें। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य अंश चैनल सामग्री। अपनी आंतरिक आवाज का अनुसरण करें। अपने उच्च स्वर की शांत मार्गदर्शक अभिव्यक्ति। ये आपके भौतिक शरीर में दिव्य बुद्धि के घर हृदय में पाया जाता है। आपका आंतरिक परामर्श आपके अहंकार के निर्देशों से भिन्न है और न केवल आपके सर्वोत्तम हित में बल्कि सभी व्यक्तियों की भलाई में कार्य करता है। यह चापलूसी या निंदा नहीं करता और आपको कभी नहीं बताता कि क्या करना है। यह केवल
सौम्य सुझाव देता है जो आपके प्रमाणिक पथ का समर्थन करता है। यह इस जीवन में आपकी आत्मा के दिशा सूचक यंत्र है और यह आपको दुनिया के उलझन से में खो जाने से बताता है। आपकी आंतरिक आवाज व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह दिव्य आत्मा के साथ आपका निजी संबंध है जिसे हम सभी साझा करते हैं। यह आपका मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल उपलब्ध है। इसके ज्ञान से जुड़ने के लिए बस अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करें और सुने। वास्तव में सुनने के लिए आपको सबसे पहले यह करना होगा अन्य आवाजों से अलग होना। सबसे पहले दूसरों से राय मांगना बंद करें। अपनी आंतरिक बुद्धि से परामर्श लेने से पहले कुछ भी ना करें। उच्च स्व सूक्ष्म है और आपके अहंकार या दुनिया को आवाजों को बाधित नहीं करता है, इसलिए आपके अपने अहंकार की कोमल दिशा सुनने के लिए बाहरी शोर और उसके परेशान करने वाले शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। इस स्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता शांत चिंतन और प्रार्थना की नियमित अवधि के माध्यम से विकसित की जाती है। कोई भी आपके लिए यह निर्धारित नहीं कर सकता कि आप अपने अहंकार की आंतरिक आवाज को सुन रहे हैं या नहीं। आपकी आत्मा के कार्य का एक हिस्सा अपने आप में यह अंतर बनाना है। आइए दोस्तों, हम इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पाठ संख्या 9। अपनी आंतरिक आवाज का पालन करें। हम अपनी आंतरिक आवाज का पालन करें, उसका अनुसरण करें, उसको सुने ध्यान से। उसके बारे में बता रहे हैं। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से पुस्तक से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री। अपनी आंतरिक आवाज का अनुसरण करें, यहाँ बता रहे हैं। अपने उच्च स्वर की शांत मार्गदर्शक अभिव्यक्ति नहीं हाव भाव, यह आपके भौतिक शरीर में दिव्य बुद्धि के घर हृदय में पाया जाता है। यह हृदय के अंदर पाया जाता है। आपका आंतरिक परामर्श आपके अहंकार के निर्देशों से भिन्न है। अहंकार के निर्देशों से यह भिन्न है हमारी आंतरिक आवाज, और ना केवल आपके सर्वोत्तम हित में बल्कि सभी व्यक्तियों की भलाई में यह कार्य करता है। यह चापलूसी या निंदा नहीं करता और आपको कभी नहीं बताता यह क्या करना है। दोस्तों, हमारी जो आंतरिक आवाज है वो हमें यह नहीं बताता कि क्या करना है, ना ये किसी निंदा करता है, ना किसी की चापलूसी करता है, बल्कि यह एक सौम्य सुझाव देता है जो आपको प्रमाणिक पथ का समर्थन करता है। ये जीवन में आपकी आत्मा की दिशा का एक सूचक यंत्र है। ये सूचक यंत्र यानी कि ये हमें बताता है कि हमें कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी चुनाव हमारा है। आपकी आंतरिक आवाज व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह दिव्य आत्मा के साथ आपके निजी संबंध है। बल्कि यह हमारी दिव्य आत्मा के साथ इसका निजी संबंध है जिसे हम सभी साझा करते हैं। यह आपका मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल उपलब्ध है। यह हमारे मार्गदर्शन करने के लिए में सदा उपलब्ध है। बल्कि हम इसे आवाज को हम सुने ध्यान से, इस पर केंद्रित करें तो हमें यह सुझाव देता है, सही दिशा की ओर ले जाता है अगर हमको ध्यान से सुनेंगे तो। और दोस्तों, इस चीज को मैं स्वयं अनुभव से बता रहा हूँ कि जब से मैं ध्यान में आया तो मैं अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाया और इसके निर्देश के अनुसार कार्य करने से मेरे जीवन में कई परिवर्तन हुए। तो हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय और संजय संगति करना है, जिसके माध्यम से इन चीजों को हम जल्दी समझ पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। वास्तव में सुनने के लिए आपको सबसे पहले यह करना होगा, अगर आंतरिक आवाज को हमें सुनना है उससे पहले यह करना होगा अन्य आवाजों से हमें अलग होना होगा। जो बाकी जो शोर है, जो हमारे अंदर इतने विचार चलते हैं, उन शोरों से हमें अलग होना होगा और उस आवाज को हमें ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले दूसरे से राय मांगना बंद करें। हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कुछ भी कठिनाइयां या कुछ भी आती है तो हम दूसरों से राय मांगना पहले शुरू कर देते हैं। पहले हम अब शांत होकर बैठे, फिर अब अंदर की आवाज को जब ध्यान से आप सुनेंगे तो वो आपको वो मार्गदर्शन करेगा और आपको सही दिशा की ओर लेके जाएगा और सही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आपको थोड़ा बहुत शांत रहना है और उसको ध्यान से सुनना है। आंतरिक बुद्धि से परामर्श लेने से पहले ये कुछ भी ना करें।
आंतरिक बुद्धि से यह बता रहे हैं कि परामर्श लेने से पहले कुछ भी ना करें। अगर आप अपनी आंतरिक आवाज से अगर कुछ भी परामर्श लेना है तो पहले किसी से राय ना मांगे, पहले अपने अंदर की आवाज को सुने। उच्च स्व सूक्ष्म है और आपके अहंकार या दुनिया की आवाजों को बाधित नहीं करता है, इसलिए आपके अहंकार की कोमल दिशा सुनने के लिए बाहरी शोर और उसके परेशान करने वाले शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने जो भी हम बात सुनते हैं, जो बाहरी शोर करते हैं, उसको ध्यान से हमें सुनना चाहिए कि हमें सही रास्ते पे लेके जा रहा है या गलत दिशा की ओर लेके जा रहा है, और उन शब्दों को ध्यान देना चाहिए। इस स्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता शांत चिंतन और प्रार्थना की नियमित अवधि के माध्यम से विकसित की जा सकती है। दोस्तों, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, शांत होकर नहीं बैठेंगे, तब स्वाध्याय नहीं करेंगे, संजन संगति नहीं करेंगे, और इन तीनों चीजों को हमने नहीं नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तब तक हम अपने आंतरिक आवाज को नहीं सुन पाएंगे, ना अनुभव कर पाएंगे। इन चीजों को करने से हमें जल्द ही इन चीजों को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको स्व अनुभव से बता रहा हूँ। कोई भी आपके लिए यह निर्धारित नहीं कर सकता कि आप अपने अहंकार की आंतरिक आवाज को सुन रहे हैं या नहीं। आपकी आत्मा के कार्य का हिस्सा आप अपने आप में यह अंतर बनाना है। यह हमारे जिम्मेदारी है कि अपनी आत्मा के कार्य का एक हिस्सा अपने आप में वह अंतर बनाना है। इसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। अपने आंतरिक आवाज को हम विकसित करें, उसको सुने, उस हृदय के अंदर जो हमारी आंतरिक आवाज है, उसको हम अपने हृदय को अच्छी तरह से अंदर उसको सुने, उस आवाज को, और उसके अनुसार अपना कार्य करेंगे तो हमें हमेशा सफलता मिलेगी। ये मैं स्व अनुभव से बता रहा हूँ। मेरे जीवन के अंदर कई भी परेशानियां या कोई भी कठिनाई आई, तब जब तक मैं अपने आंतरिक आवाज से उसको सुना और मुझे सही मार्गदर्शन मिला, और मेरे जीवन के अंदर कई परिवर्तन हुए। और ये नहीं कि मैं किसी से राय नहीं मांगता, या नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले शांत होकर आप अपने आंतरिक आवाज को सुने, और वो आपका मार्गदर्शन जरूर करेगा कि आप किस व्यक्ति से आप सलाह लें, या आपको जो कार्य में जो कठिनाई आई है उसका ये हल है, ये खुद ही आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से सुने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।